السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج آپ کے سامنے حاضر ہونے کا میرا مقصد یہ ہے کہ میرے کچھ احباب نے گجرات کے مختلف شہروں سے اور بالخصوص بروڑا ضلع کے میرے کچھ احباب معتقدین، میرے ملنے والوں کا خاص مجھے یہ فون آیا اور انہوں نے اپنے علاقے کے، اپنے گاؤں کے کچھ ویڈیوز مجھے بھیجے اور کہا کہ حضرت اس پر آپ کچھ گفتگو فرمائیں۔ عزیزان گرامی، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میری ماں اور بہنوں، کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن بس میں آپ کو اپنا حال اس شاعری کے ماتحت پہنچانا چاہتا ہوں کہ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ عزیزان گرامی، میں فی الحال جس علاقے میں مقیم ہوں، میرا جہاں مقام ہے، میں اس علاقے کی بات کرنا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں۔ ہمارے علاقے میں آج 9 محرم کو اور 10 محرم کو کچھ اس طرح محرم منایا جاتا ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ محرم، یہ گاؤں یا جو عوام محرم منا رہی ہے وہ اہل تشیع سے ہے یا اہل سنت سے۔ میرے عزیزان گرامی، میرے دوستو، میں کچھ بات بہت ہی کڑوی کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی جب میں نے ویڈیوز دیکھے، مجھ سے رہا نہ گیا اور میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا، اس لیے کہ آج قوم کا حال بہت ہی برا حال ہے۔ آج ہماری قوم کس دلدل میں، کس گمراہی کے دلدل میں، بدعت کے دلدل میں، غلط رسومات کے دلدل میں پھنسی جا رہی ہے۔ میں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں نے محرم دیکھے، میں نے سوراشٹر کے محرم دیکھے، کاٹھیاواڑ کے محرم دیکھے، تو میں نے جو دیکھا وہ آپ کو میں پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ جہاں تک تعزیہ داری کا معاملہ ہے، اس میں ہمارے علماء اہل سنت کی مختلف رائے ہیں اور تمام لوگ اس علماء اہل سنت کے فتوے پر اپنے اپنے طریقے سے گامزن ہیں۔ اور رہا ڈھول بجانے کا مسئلہ، تو اس میں بھی علماء اہل سنت کی الگ الگ رائے ہیں۔ تو خیر، آپ امام حسین کے اعلان کے لیے ڈھول بجاتے ہیں تو درست ہے، تعزیہ داری اگر شریعت کے دائرے میں ہے، شریعت کے حدود میں ہے، تو بالکل تعزیہ داری بھی جائز ہے۔ میرا مقصد ابھی فی الحال نہ ڈھول پر گفتگو کرنا ہے، کیونکہ وہ اختلافی ہمارے علماء کی رائے عوام کے سامنے آ چکی ہے، نہ تعزیہ داری پر گفتگو کرنا ہے، اس لیے کہ ہمارے علماء اہل سنت کی تعزیہ داری پر بھی رائے آ چکی ہے۔ لیکن میں جس پر آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سواری اور ماتم۔ یہاں پر رک کر میں ایک بات آپ لوگ کو گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ میری تقریر، میری گفتگو، میری بات کا
मैं जिन्हें कहना चाहता हूं, मैं जिनको समझाना चाहता हूं, वो फकत और फकत अवाम अहले सुन्नत हैं। मैं अपनी बात अहले तशी जो हैं, जो शिया हजरात हैं, मैं बिल्कुल उन्हें अपनी गुफ्तगू में शामिल नहीं करता। मेरी गुफ्तगू में मेरी हर बात या मेरी तनकीदी बात जो भी है वो फकत अवाम अहले सुन्नत है। अहले तशी मेरी बात में शामिल नहीं है, इस बात को खास ध्यान रखें। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सवारी होती है और सवारी के साथ जो लोग होते हैं, मैंने अक्सर बेशतर काठियावाड़ में देखा कि उसमें ज्यादातर गंजेरी, सटोरी, दारूड़िए और क्या कहते हैं, जिनको कोई काम काज नहीं है, बिल्कुल जाहिल किस्म के लोग, अनपढ़ किस्म के लोग मैंने काठियावाड़ में देखे अक्सर और बेशतर, जो ज्यादातर मातम करते हैं, जिसको पीटनी कहते हैं। और आप यूपी में जाइए, यूपी में मैंने मातम करने वालों को देखा, बिल्कुल गरीब, जिनका ना खाने का ठिकाना, ना जिनके मकान का ठिकाना, ना जिनके कपड़े का ठिकाना, कोई इल्म से दूर दूर तक का भी उनका वास्ता नहीं। मैंने ऐसो को मातम करके देखा, वो भी सिर्फ सुन्नी अवाम। अब आइए हमारे बड़ौदा जिले में, हमारे गुजरात में, यहां पर आप देखें कि जो सवारी के पीछे दौड़ रहे हैं, जो सवारी के साथ ताजियेदारी के साथ मातमगिरी कर रहे हैं, उनमें मैंने देखा कि ज्यादातर आवारा लड़के हैं, जो मां बाप के कहने में नहीं है, जो अपने पीर मुर्शिद के कहने में नहीं है, जो अइम्मा हजरात उलमा किराम के कहने में नहीं है, जो बिल्कुल आवारा किस्म के लड़के हैं, जो अपने मां बाप के कहने पर नहीं है और अपने मां बाप का कंट्रोल अपनी औलाद पर नहीं है। बस वही लोग कूद रहे हैं, खूब नाच रहे हैं, और उसके साथ एक म्यूजिक बज रहा है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, वो भी ऐसा म्यूजिक, मैं आपको वीडियो बताना इसलिए मुनासिब नहीं समझता कि बड़ा अफसोसनाक कि आज हमारी कौम हुसैन के नाम पर कहां जा रही है। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है, कल बाजार में एक अजीब बेवफा मंजर देखा जाएगा, कल बाजार में एक अजीब बेवफा मंजर देखा जाएगा। हुसैन जिंदाबाद कहने वालों को यजीद का अमल करता देखा जाएगा, और हुसैन की नमाज तो जंगे करबला में भी कज़ा न हुई थी, कल उन्हीं के नाम पर लोगों को बेनमाजी देखा जाएगा। उसके बाद कहते हैं, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, हुसैन का जनाजा देखकर भी पर्दा नहीं छोड़ा था बहन ज़ैनब ने। हुसैन का जनाजा देखकर भी पर्दा नहीं छोड़ा था बहन ज़ैनब ने। कल ताजियों के नाम उन्हीं बहन को बेपर्दा देखा जाएगा। तो मेरे अजीजों, आप गौर करें, आप वीडियोस देखें हमारे बड़ौदा जिले के, जहां पर मातम होता है, और मातम इस तरह होता है जैसे कि शिवरात्रि में या गणपति में या गरबों में, चौराहों पर, मैदानों में क्या होता है, हमारे यहां हिंदू भाई लोग करते हैं कि बीच में एक मंडप बनाते हैं और ऊपर म्यूजिक वाले चले जाते हैं, और चारों तरफ शिवरात्रि में गरबा खेलते हैं, और ऊपर गरबे की धुन में म्यूजिक बजाया जाता है, और उसी धुन पर लोग रश्क करते हैं, लोग नाच करते हैं, और उसी के साथ मर्द भी होते हैं, औरतें भी होती हैं, लड़की भी होती है, बेहयाइयां होती हैं, बेपर्दगी होती है। बिल्कुल सेम इसी तरह आज माहे मुहर्रमुल हराम में 10 रमजान और 9 रमजान, जो कत्ल की रात, जो अहले बैत अतहार पर एक कयामत इसी दुनिया में गुजर गई, उन दिनों में हमारी कौम क्या कर रही है?
चौक में, कस्बे में, मैदान में इसी तरह मंडप बनाकर और बिल्कुल इसी तरह म्यूजिक बजाया जाता है, म्यूजिक बजाया जाता है और म्यूजिक की धुन पर सवारी को दौड़ाया जाता है और पीछे नौजवान लड़के 15 साल के, 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के, 35 साल के नौजवान जो इल्म से बिल्कुल लागर है, जो इल्म से बिल्कुल बेपरवाह है और बिल्कुल आवारा किस्म के, जिन पर अपने जी मां बाप का जिन पर कंट्रोल नहीं है, वो कौम इस तरह गुमराही में दलदल में फंसी हुई है। और ये कौम, ये वो लोग हैं ना, ये अपने मस्जिद के इमाम की मानते हैं, न अपने वहां के आने वाले उलमाओं की मानते हैं, न अपने पीर मुर्शिद की मानते हैं, न अपने वडील की मानते हैं। मैं ऐसे लोगों से कहूंगा कि तुम मातम करते हो, तुम सीना पीटते हो, तुम पिटनी करते हो, तो मैं किसने कहा कि पिटनी करना दुरुस्त है, पिटनी करना जायज है, मातम करना जायज है? याद रखो, ये तुम पर इसी दुनिया में आजाब है। कल कयामत में जहन्नम में जिस तरह तुम मातम करोगे, सीना पिटोगे, सर पिटोगे, ये तुम पर लानत है कि आज ही तुम दुनिया में सीना पीट रहे हो और अपना सर पीट रहे हो। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, याद रखो, ये बंद करो। अगर तुम अपने आप को अहले सुन्नत व जमात कहते हो, तुम अपने आप को सुन्नी कहते हो, तुम अपने आप को पीर मुर्शिद वाला कहते हो, तुम अपने आप को गौसे आजम का चाहने वाला कहते हो, तुम अपने आप को ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती का मानने वाला कहते हो, तो तुम्हें किसने इजाजत दी है कि तुम मातम करो, तुम पीटनी करो और सुन्नियत को बदनाम कर रहे हो? याद रखो, अजाब दूर नहीं है तुमसे, अजाब दूर नहीं है तुमसे, अजाब को तुम दावत दे रहे हो। आज मुसलमानों की जो बर्बादी है, मुसलमानों पर जो जवाल है, वो दुश्मन नहीं है बल्कि खुद मुसलमानों के आमाल है। याद करो, आका हुसैन अलैहिस्सलाम पर ये दो दिन किस तरह और किस वजनी तौर पर गुजरे थे। अगर तुम तसव्वुर करो, अगर तुम उस मंजर को अपने जहन में लाओ, अपने नजरों में लाओ, तो शायद तुम्हारे होठों से मुस्कुराहट निकल जाए, शायद तुम्हारे चेहरे से रौनक हट जाए, शायद तुम्हारी बेकरारी खत्म हो जाए, तुम्हारी नींद खत्म हो जाए। और आज उस पर अल्लाहु अकबर, तुम इतना कूद रहे हो और तुम इतनी हंसी मजाक कर रहे हो, हाँ, जैसे कि तुम्हारे बाप की या तुम्हारे माँ बहन की या तुम्हारे खानदान में किसी की शादी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अजाब को दावत ना दो, अजाब को दावत मत दो। ये तुम जो मातम कर रहे हो, ये खुसूस बिल खुसूस तुम स्पेशल अजाब को दावत दे रहे हो। तो मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, और मैं तमाम होशमंद अवाम अहले सुन्नत से कहूंगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है, इसके जिम्मेदार हमारे उलमा नहीं है, इसके जिम्मेदार ये बिदआत के, ये रसूमात के, ये गुमराही के जो खुसूस बिल खुसूस मुहर्रम में की जाती है, इसके जिम्मेदार मस्जिद के उलमा नहीं है, बड़े बड़े उलमा नहीं है, पीराने किराम नहीं है, इसलिए कि ये जाहिल अवाम इनकी मानती ही नहीं है। और हत्ता के यहां तक नौबत है कि अगर उस इलाके के इमाम, उस इलाके के आलिम अगर तकरीर में इनकी मातम और इनकी बेहुदा हरकत को अगर बयान कर दे, तो ये अइम्मा से लड़ते हैं, उलमाओं से लड़ते हैं और अपनी मस्जिद से उन्हें निकाल देते हैं। अल्लाहु अकबर। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मैं तमाम उलमाओं से कहूंगा, मैं तमाम अइम्मा हजरात से कहूंगा, तमाम मौलानाओं से कहूंगा कि अपने अंदर इनकलाबी तबलीग का जज्बा लाओ, इनकलाबी तबलीग का जज्बा लाओ और जिहादी तबलीग का जज्बा लाओ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो लोग जो तुम्हें जिल्लत से निकालते हैं, इंशाअल्लाह अगर तुमने इनकलाबी तबलीग की तो ये लोग लाचार हो जाएंगे और तुम्हें इज्जत से अपने इलाके की मस्जिद में रखेंगे। आपको करना सिर्फ इतना है कि जिन इलाकों में अहले सुन्नत व जमात मातम करते हैं, सीना पीटते हैं, पिटनी पीटते हैं, उस इलाके की मस्जिद में हरगिज आप इमामत न करें। और अगर इमामत करना जाना है, इमामत करनी है, तो इस शर्त पे जाना है कि हम अलल ऐलान मुहर्रम के चारों जुमा रद्दे मातम पर बयान किया जाएगा।
तब इस शर्त पे हम आपकी मस्जिद में इमामत करेंगे या आपकी गांव में इमामत करेंगे। मेरे दोस्तों, बड़ौदा जिले में नडियाद, आनंद तरफ और पेटला तरफ और दीगर इलाकों में, काठियावाड़ में ऐसे बहुत से गांव हैं जो अहले सुन्नत व जमात के गांव हैं, लेकिन वहां की जाहिल पब्लिक मातम करती है। अगर अइम्मा हजरात ने अगर ये इनकलाबी अलम, अगर इनकलाबी तबलीग का अलम अपने हाथों से ले लिया तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जीत हक की होगी। तो अइम्मा हजरात को चाहिए कि हर वो इलाके में जहां मातम किया जाता है, जहां पिटनी की जाती है, वहां पर जरूर उसका रद्द करें। जरूर अवाम अहले सुन्नत को कुरान और हदीस की रोशनी में, अइम्मा मुज्तहिदीन की रोशनी में, हमारे बुजुर्गान दीन की रोशनी में हमारी आवाम को और नौजवान तबके को समझाएं कि अहले सुन्नत व जमात में मातम करना, पिटनी करना बिल्कुल नाजायज हो, हराम है। इंशाअल्लाह अगर आपने ये बेड़ा उठा लिया तो इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। और मैं तमाम होशमंद अहले सुन्नत व जमात से कहूंगा, तमाम उन उलमाओं से कहूंगा, तमाम उस शख्स से कहूंगा कि जो भी मेरा ये वीडियो सुन रहा है उसे मैं कसम देता हूं अल्लाह तबारक व तआला की कि इस वीडियो को जरूर बिल जरूर लोगों तक पहुंचाए और खुसूस बिल खुसूस उन लोगों तक पहुंचाए, उस गांव में पहुंचाए, उस इलाके में पहुंचाए जहां पर मातम किया जाता है। मेरे दोस्तों, कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। शास्त हुसैन, बादशास्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, सरदाद नदा दस्त दरदस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलास्त हुसैन।